Hello student, today we take some other questions which relates to the linear equation in two variable. We have some word problem. Question number 6 of exercise 4.3. If the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force is 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 unit. ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको रिलेशन है the work done and the distance traveled. When for example when we push a body, then what happened? We applied some force on it. That means we work done on it, then it traveled some distance. So the question is based on this type of physical activity. So we have to first make a relation, okay, and then force is constant. जो force है वो constant है. ये physics से related science का एक question है. ये यहाँ पर आपने physics में पढ़ा होगा work energy में work done is equals to F into D. F into D. F is force, D is distance traveled, and W is the work done. Work done is depend on the force applied and the distance traveled. So here what is given? Work done is force is directly proportional to the distance traveled. So here if work done is W and distance traveled by the body is D, then what is given? W will be proportional to D. W is proportional to D. Work done is proportional to D. अब यहाँ यदि हम इसको इक्वेट करेंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो हम जानते हैं कि वो फोर्स होगा. तो यहाँ पर ये होता है W equals to F into D. Force applied on it and distance traveled. The product gives the work done. अब यहाँ F कितना है? F कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा since F is 5, so W becomes 5 into D. तो ये तो हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो रिलेशन है वो एक फिजिकल क्वांटिटी में आ गया, फिजिक्स के टर्म्स में. लेकिन यदि हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्लेस करें तो हम ये W को X से रिप्लेस कर सकते हैं. लेट वर्क डन W इक्वल्स टू X और इसको हमने Y से ले लिया, मान लीजिए कौन, और एन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड that is D equals to X. So equation becomes from 1 it becomes Y equals to 5 into X. Okay, तो ultimate X क्या है? Distance travel and Y is the work done. और ये 5 क्या है? It is a force applied on it, force which is constant. Okay, so we get an equation. तो ये first part हो गया. Express this in the form of equation in two variable. तो ये एक हमारा पार्ट हो गया क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 2. अब आपको क्या करना है? वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, दिस रिलेशन और इक्वेशन. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे? वी पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y. सो फॉर x इक्वल्स टू 0 व्हाट वी हैव? y इक्वल्स टू 5 into 0 which is 0. फॉर x इक्वल्स टू 1 व्हाट वी हैव? y इक्वल्स टू 5 into 1 दैट इज 5. एक और वैल्यू हम ले सकते हैं, वन मोर वैल्यू वी टेक इट. फॉर x इक्वल्स टू -1 y becomes 5 into -1 दैट इज -5. और आप इसका टेबल यहाँ बना सकते हैं x और y के लिए. वी मेक अ टेबल फॉर x एंड y. सो व्हेन x इज 0 y इज 0, व्हेन x इज 1 y इज 5, when x is -1 y is -5. So coordinates of point
So coordinates of the points are 0,0, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, सेकेंड है 1,5 एंड -1, -5. So we have 3 points, or these are the solutions of this equation. Okay, now we plot the graph. ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे. तो आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उसका यूज करिएगा, क्योंकि आपको इनिशियली वैल्यूज भी फाइंड करने हैं. तो यहाँ जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको ग्राफ पेपर का यूज करना है, या फिर प्रॉपर स्केल का यूज कीजिए जिससे कि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाए. तो देखिए हम यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज y एक्सिस, and the horizontal line we draw, it is x axis, आप स्केल से और उसका यूज करके बना सकते हैं. ये ओरिजिन है, ये x डैश हो गया, ये y डैश एक्सिस हो गई है. अब यहां पर क्या करना है आपको? वर्क डन और x हमने क्या लिया हुआ था, यहां देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो इसको हम x एक्सिस पर लेंगे, और वर्क डन y है तो इसको हम y एक्सिस पर लेंगे. स्केल से आप यूनिट्स को डिसाइड कर लीजिए. तो यहां पर देखिए ये 1 यूनिट है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5. And on y-axis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and -1, -2, -3, -4, -5, -6, then -7, -8, -9. ये हमने यहाँ ड्रॉ कर लिए थे, तो और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, like this. On y-axis we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. ओके, तो ऐसा आपने ये ग्राफ पेपर होगा तो इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं. अब हम इन पॉइंट्स को डिनोट करेंगे. 0,0, तो ये ओरिजिन होगा. दिस पॉइंट इज 0,0. व्हेन सेकेंड पॉइंट इज 1,5. एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है. तो ये देखिए कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे. यदि हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें यहां से, तो ये होगा, और यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये पॉइंट हमारा होगा, ये पॉइंट हो गया 1,5. एंड सेकेंड पॉइंट इज -1, -5. x -1 ये होगा, -5 ये कोऑर्डिनेट होगा. यहां देखिए यदि हम पैरेलल लाइन, वी ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस. ग्राफ पेपर पर ये ऑलरेडी क्या होंगे, पहले से उसमें ड्रॉ होंगे, आपको उनको हाईलाइट करना है, या आप, तो ये हमारा पॉइंट हो गया -1, -5. ओके, अब आप देखिए ये पॉइंट्स कैसे हैं, दे आर लाइज ऑन अ लाइन. तो हम यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. अब यहां देखिए, यहां आप इक्वेशन लिख सकते हैं y = 5x. ओके,
तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अब यहाँ इतना पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, इक्वेशन फ्रेम करना और उसका ग्राफ प्लॉट करना। यहाँ एक नया पार्ट और ऐड हुआ है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। अब ग्राफ से आपको रीड करना है, क्या रीड करना है? द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अब डिस्टेंस ट्रेवल हमने कहां पर लिया हुआ है? ये एक्स एक्सिस पर। ये क्या लिया हुआ है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और यहां पर हमने क्या लिया हुआ है? वाई एक्सिस पर क्या लिया हुआ है? वर्क डन। ये वाई एक्सिस पर है, ठीक। अब हमको क्या देखना है? फर्स्ट, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अब देखिए ये 2 यूनिट यहां पर होगा। अब इसके लिए जो वर्क डन है वो कितना होगा? वर्क डन निकालना है। अब यहां थोड़ा सा हमको इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये ग्राफ को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये हमारे एक्सिस को भी हमको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैल्यू को डिटेक्ट करना है। और इसको मार्क कर लीजिए चाहे तो अभी आप। ये 8, 9, 10, 11। अब आपको ये देखना है कि जब वर्क डन आपको फाइंड करना है व्हेन बॉडी ट्रेवल्स 2 यूनिट। ये 2 यूनिट है। अब यहां से हम क्या करेंगे? एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब यहां देखिए y एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, ये हमने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पर, तो ये कितना आ रहा है? कितना आ गया? 10 यूनिट आ गया। ये कहां पर? क्योंकि ये जो एक्सिस हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। यहां पर जब distance traveled by 2 unit, then work done will be 10 because point P is 2, 10. Okay, so here the deduction from the graph, first, when the distance traveled by body, distance traveled by the body is 2 unit, then work done will be 10 यूनिट। ओके, क्यों? क्योंकि यहां से जब आपने परपेंडिकुलर या लाइन पैरेलल टू एक्सिस ड्रॉ की, तो ये ग्राफ को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पी पॉइंट पर। अब पी से हमको ये निकालना है कि ये वर्क डन कितना है, तो हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? 10 पर। तो वर्क डन कितना हो गया? 10 हो गया। चलिए, तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है? व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0, 0 माने यहां पर, तो ये लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? ओरिजिन पर। तो सेकंड क्या होगा? वर्क डन विल बी 0 यूनिट, क्योंकि फॉर x इक्वल्स टू 0 y ऑल्सो भी 0। तो ये ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 0, 0 माने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये भी 0 है और वर्क डन भी 0 होगा। तो इस तरीके से हमने ग्राफ से ये डिटेक्ट किया हुआ है। अब एक दूसरा पार्ट हम देखें। अभी हमने क्या किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमको गिवन था, तो हमने वर्क डन निकाल लिया। अब यदि वर्क डन गिवन है तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक पार्ट है कि इफ वर्क डन is 7 unit, work done is 7 unit, then what will be the distance traveled? अब देखिए 7 यूनिट। अब यहां पर हम क्या करेंगे? y एक्सिस पर वर्क डन से 7 यूनिट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे
थ्रू विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां से देखिए हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके, अब ये यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट आर है। आर से हम क्या करेंगे, आर से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पर अब देखिए ये पॉइंट कहां पर है, बिटवीन 1 and 2। अब यहां पर जो आपने यूनिट लिया है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में आप स्केल से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ग्राफ में 1 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल पार्ट्स। स्केल से भी आप बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड 10 पार्ट। तो यहां पर ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सपोज ये 1.7 के करीब ये होगा। अब एग्जैक्ट क्योंकि हमारा ये स्केल प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो ये कितना होगा, नियरली 1.7 और 8 के करीब होगा। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 1.7 यूनिट। आप इसको वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। यदि हम यहाँ इस इक्वेशन में y को हमने 7 रखा तो 5x, तो x बिकम्स 7/5, 5 1 जा 5 और देन कितना हो गया 5 4 जा, तो यहाँ कितना आ रहा है ये 1.4। जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ मेरे ख्याल से ये 1.4 आना चाहिए नियरली। तो ये हम वर्क डन से डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल से वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे पास अभी स्केच पेन से ड्रॉ कर रहे हैं तो प्रॉपर पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ग्राफ से हम इन यूनिट्स को, इन वैल्यूज को डिटेक्ट कर सकते हैं। Now we come to another question of exercise 4.4. Give the geometric representation of y equals to 3 as an equation in one variable and in two variables. यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है कि ये जो वैल्यू, ये जो दिया हुआ है y equals to 3, इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहली बात ये क्लियर होना चाहिए, y equals to 3 is a linear equation in one variable। तो इसको हमें डिनोट करना है किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। अब वन वेरिएबल है तो देयर विल बी वन डायमेंशन, दैट इज इन वन वेरिएबल y equals to 3, so we have to draw a number line, क्योंकि इस यहां पर सिंगल डायमेंशन होगा। x और y इन टू वेरिएबल, देन वी हैव टू डायमेंशन, x एक्सिस y एक्सिस के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ सिंगल डायमेंशन में ये 0 1 2 3 4, यहाँ -1 -2। तो y equals to 3 is this point, this will be y equals to 3, this will only be a point। ये क्या होगा, एक पॉइंट होगा in one variable। okay, now in two variable, second in two variables। अब ये हमको जो गिवन इक्वेशन है y equals to 3, we have to write this equation in two variables। अब two variable में कैसे करेंगे, y is there, x is not there, so we include in it 0 into x, 0 into x is 0 plus y equals to 3। now this equation turns to a linear equation in two variable। okay, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ कोफिशिएंट 0 है, हालांकि हमने ये क्या एज्यूम किया था, कोफिशिएंट मस्ट नॉट बी 0, बट यहाँ सिंगल वेरिएबल को हमने डबल वेरिएबल के फॉर्म में लिख लिया। ठीक, अब इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन में क्या एक खास बात है, वो क्या है, स्पेशलिटी क्या है, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर x1 पुट करेंगे तो भी 1 into 0 0 होगा, 10 करेंगे तो 10 into 0 0 होगा, 15 करेंगे -12 करेंगे, कोई एनी वैल्यू, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x this term will be 0, so what we get, y equals to 3। so here we can check it and write it for x equals to -5, या और छोटी वैल्यू रख लें -1, what we have
0 into -1 plus y equals to 3. This gives y equals to 3. For x equals to 2, what we have? 0 into 2 plus y equals to 3. Again this gives y equals to 3. You can put any value. So some other values, y always be 3. You can any value of x. So what we have? We make a table x and y. When x is 1, -1, y is 3. When x is 2, y is 3. And for other values also, y always be 3. So points are -1, 3 and 2, 3. अब इसमें हमने और वैल्यूज इसलिए नहीं ली कि y जो है वो 3 ही होगा, इसलिए इसमें मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। अब हम यहाँ एक्सेस ड्रॉ कर लें। वर्टिकल लाइन y एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सेस है, x o x डैश, y o y डैश, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 and so on. फर्स्ट पॉइंट क्या है? -1, 3. x is -1, y is 3. So point will be here, -1, okay. Second point क्या है? 2, 3. x is 2, y is 3. So point will be here 2, 3. और भी अदर पॉइंट्स में मान लीजिए आपने 3 लिखा हुआ है, 3 रखेंगे तब भी 3 होगा, तो 3, 3 भी आ गया। चाहे तो एक और पॉइंट आप ले लें, तो ये पॉइंट होगा 3, 3। ये सारे पॉइंट्स कैसे हो रहे हैं? दे लाइज ऑन अ लाइन, दे लाइज ऑन अ लाइन। ये इक्वेशन क्या हो गया? y इक्वल्स टू 3 और यू मे राइट 0 इंटू एक्स प्लस y इक्वल्स टू 3। ये लाइन कैसी होगी? पैरेलल टू x एक्सिस। इफ y इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट यहां पर कितना है? 3। इफ y इज कांस्टेंट देन लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, है ना? तो यहां पर एक एक्स्ट्रा पार्ट जो आपको अभी इससे मिला कि इफ y इक्वल्स टू a देन लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। लाइन कैसी होगी? x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब यहाँ a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, a इज एनी रियल नंबर। सेकंड, इफ ऐसा भी हो सकता है x इक्वल्स टू b, ऐसा भी हो सकता है, देन लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। अब मान लीजिए x इक्वल्स टू 5 है, तो y आप लिखेंगे x इक्वल्स टू मान लीजिए 5 है, तो आपका इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या होगा? x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू 5। अब फॉर एनी वैल्यू ऑफ y x ऑलवेज बी 5। जब x ऑलवेज 5 होगा तो 1 के लिए ये भी 5 है, फिर 2 के लिए 5 है, माने 5 2 5 3 5 4। तो जो लाइन आएगी वो कैसी होगी? पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये इक्वेशन है जो एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका सेकंड है, उसको आप करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे, उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, फिर उनका हम ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, ग्राफ से हम कैसे डिडक्ट करेंगे, ये तमाम बातें हमने इस चैप्टर में की हुई हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप करके देख लीजिए। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई थिंक आपने इसको एंजॉय किया होगा।